All right, so in this video, we're going to be talking about Japanese candlesticks and their patterns, how to recognize the basic formation of the foundation of a candle, or uske baad different patterns that we can use as confluences, as a part of our strategy for reversals, continuations, ये different types के लिए price action में candlesticks काफ़ी अच्छी indications होती हैं. मेरे tags, Instagram, X, and even WhatsApp number that I have that you guys can contact me on for any questions, any queries, anything related, koi information ho, koi ideas ho, we can go back and forth there. So to start off on the basic, this is a quick reference guide for the candlesticks. Candlesticks, normally get them, but the proper name is these are Japanese candlesticks. They were initially, the concept was developed by a Japanese rice trader by the name of Munihisha Homa, if but that is how it's pronounced, I believe. So इसमें दो concept होते हैं. There's bullish and there's bearish. Bullish जैसा आपको पता है कि जब भी market up trend में होती है या ऊपर जा रही होती है या it's positive जो होती है, the prices are going up, ये bullish market होती है. Bearish है the opposite when it's going down. Candlestick के जो parts होते हैं, there is a body. This whole green thing represents the body. There are wicks, इनको shadows भी कहते हैं ऊपर नीचे, and there's the sub breakdown is this is the opening price. किसी भी bullish candle की opening price because it's going up वो नीचे होती है, और फिर closing price is the one higher because it's closes higher than it started. The opposite for bearish क्योंकि it's going down, so the opening is the price that's higher, and then the closing price is the one at the bottom, the body के. जो विक्स और शेडोज आते हैं वो आपकी सेम होती है, वो आपकी हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं. ये पूरी की पूरी एक रेंज है. फॉर एग्जांपल ओपनिंग प्राइस पे कैंडल स्टार्ट हुई, मे बी द प्राइस वेंट डाउन टिल हेयर एंड देन इट वेंट ऑल द वे अप टिल हेयर एंड देन इट केम बैक टू क्लोज. ये एक कैंडल एक टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट करती है. अब वो 1 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे. Basically, this is a representation of, let's say, 1 hour at 9 a.m. So at 9 a.m., this is where the price opened. During that 1 hour, from 9 to 10, the price went up till here. The lowest point was this. The highest point of price was this. Within this range, the price moved, and eventually at 10 o'clock, it closed here. So this is what happened with the price in that 1 hour. Bearish में भी यही होगा. It started at here, and after moving in that range, it closed at this point. हम इसको फिर यूज़ करेंगे आगे टू डिटर्मिन हमारे मार्केट के जो प्राइस एक्शन होता है कि इस वक्त आर पीपल कमिंग इन, आर पीपल गोइंग आउट, आर दे बाइंग, आर दे सेलिंग, इज देयर मोर पुश टूवर्ड्स द बाय साइड, इज देयर मोर पुश टूवर्ड्स द सेल साइड. ये चीज़ हम कैंडलस्टिक से डिटर्मिन कर सकते हैं. स्टार्ट विद वेरी सिंपल पैटर्न्स, बेरिश पैटर्न्स. तो this is, it can be bearish but it can also be bullish depending on you. This is a very good reversal pattern. So the hanging man, quite simple. The price opens here, this is the high, the price goes all the way down and then it closes here. ये हमारे एक अच्छा रिवर्सल के लिए यूज होता है. Same with shooting star, it's like an inverted hanging man कह लो कि it opens here, the price goes all the way लेकिन eventually it closes here. अब how this can tell us one thing is, if you see the price open here, the price went all the way there, but there was so much pressure from the sellers during that point. Okay? Not only did it come all the way back down, it closed here. So the body is much smaller than the wick, the shadow. Same goes for this case. We'll look at chart patterns to see for reversal. Look at where, yeah. So if you look at this chart, go down way. So this is Euro USD 1 hour. Right now it's March, so it's trading. So we can see as an indication, I mean, clearly we can see there's not a necessity that body ka wick hoga hi nahi. Wick ho sakta hai, lekin the wick is very small, negligible in comparison to this. So if you look at this pattern, you see how after this it kind of was an indication that okay, there's no such thing as 100% guarantee that ab ye bana hai to usne confirmed reverse hona hai. This is an indication. We use it in confluence with our other strategies and our other confluences within our strategy to determine and see how after this and then it started reversing back down. Sorry.
Same goes if you look for other patterns. If you look at it, it doesn't matter if it's green or red. It's mainly where it's made. You come back down. Let's see. Let's try looking up. I'm looking in hindsight because of course the chart is there. My price ko ye to nahi ki I'm trying to determine. Lekin after practice, after experience, after back testing, you can figure these things out and you learn these things. But mainly because it's a reversal pattern, we're trying to look at for points of reversal. Like look at this. See this? I'm gonna make something around it so it's more easier for you to understand. Look at this. Sorry. See this? How this also is, yeah, even if you look at this other shape right next to it. See how they're similar? And then you can see the price came down, it consolidated for a bit, it made this and then reverse. Bit of jump, price action thoda jargi aisa hai, lekin eventually it went back. It went all the way up, it reversed. So this is how candles kind of work. We're going to look at another example. So there are patterns that are one candlestick patterns. Then there are two candlestick patterns, like a pair, do honi chahiye uske andar. Then there's another one that's three. So if you look at this is called bearish engulfing. The bearish engulfing is, in sense, there's also bullish engulfing, but we'll talk about this later. We have a bullish candle and then we have a bearish candle. The bearish candle mein jo body of the second candle engulfs the body of the first. So the opening and the closing की जो body है is bigger than this body. और wicks भी इसके wicks से छोटे ही prefer, लेकिन हम mainly इसको देखते हैं. You look at this, how there's a small candle here, and then there's been engulfed, like shadow कह लो, engulf कह दो. So it's kind of आपका पूरा ऊपर उसको उर्दू में the word I'm trying to look for is cover कर लेता है. Let's go with something simple. So this is engulfs it. If we try looking for something similar in terms of engulfing, this look at this. This is an engulfing pattern. See this, and then the price went down. Of course, because it is an hourly chart, you can use this and then go into a shorter, lower time frame and then trade. But this is a good enough move to capture what 82.28, 82, a good 20 pips, which is quite decent. Capturing 20 pips is quite decent. See this? This is a bullish engulfing. We have a bearish candle. By the way, मेरे chart के ऊपर black is bearish, green is bullish. Color matter नहीं करता. कोई red और green use करता है, कोई blue और grey use करता है, कोई green और black करता है. Color आप कोई भी अपनी तरफ से set कर सकते हो. ये concept नहीं है कि it has to be red and green. The price, as long as you know what the color represents, you can change the color to customize it for your own needs. Something I should have mentioned earlier, like no worries. So this is bearish, bullish. See how there's a candle here and how massively it's covered, and then the price keeps going up and up and up, and then so even if you can enter at this point, which is what 83.48, went up till 87, so that's about 40 pips. Of course, depending on how long you can hold the trade. ये आपकी bearish or bullish. See this? This is another example. This is a bearish engulfing. Right here, engulfing the candle. You find a lot of bearish engulfing, bullish engulfing in the market. If you look at this, see this candle here, even though the body is much bigger, but it's not considered to be engulfing because the rule is it has to cover the whole body. But we only have a wick. We're not covering the body, so we're not going to count this as a bullish engulfing or a bearish. This is not bearish because it's the same size, so this is not going to be counted. This is a bearish engulfing. Because if you look at this, this is also, there's हमने देखा था, a hanging man. So at this point we see a hanging man and an engulfing. Like है तो दो separate, लेकिन they kind of combined इस तरह हो जाता है, and then we can see the price goes down. The price goes down by, if we use this tool for measurement, the price has gone down what 41 pips in 2 hours, which is a very good move to capture. Coming back to bearish harami. Harami is the Japanese word. So the body of the second candle is inside the body of the first candle. ठीक है, इसको inside candle भी कहते हैं, तो bearish harami भी कहते हैं. ये gap down होता है. ये bullish के लिए भी apply होता है. I believe अगर आगे मैंने बनाया हुआ है bullish के लिए, देखो bullish के लिए भी अगला separate बना हुआ है. ये bullish के लिए भी होता है.
तो सेम जैसे मैंने आपको इसके अंदर एग्जांपल दी थी, बेरिश और बुलिश से डिटरमिन करते हैं किस डायरेक्शन में होता है. नॉर्मली बेरिश इनगल्फिंग यू एक्सेप्ट इट एट अ हाई पॉइंट वेयर यू एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू चेंज टू अ डाउन ट्रेंड. जब आप आएंगे टूवर्ड्स बुलिश इनगल्फिंग यू आर एक्सपेक्टिंग एट अ लो एंड प्राइस टू रिवर्ट इनटू एन अप ट्रेंड. डायरेक्शन से डिटरमिन करने right, we have bearish harami. This is, we're going to look at the same patterns. We have a good green candle or a bullish candle followed by a bearish inside candle जिसकी body and ideally preferably wicks भी इसके अंदर ही cover हो जाए. So going back, we start with the chart here. Let's have a quick look अगर हमें इधर कुछ मिलता है before we move forward. Look at this one. See, this is a bullish candle followed by a bearish candle in the inside. Ab, this is one. This is an indication that price can potentially reverse now, and after some time it reversed. Immediately, lazmi nahi hai. There's a lot of things going. Ab jaise yahan pe look at the pattern that we had, our hanging man. ये bearish हो pattern अभी हम आगे देखेंगे. मैं इसकी example आपको दिखा भी दूंगा. Because I'll show it to you now. See this, the hammer. We expect the hammer to be at a low point and reverse. माइनस छोटा सा विक डजेंट मैटर. यहाँ पे है ब्यूटिफुल एंड देन इट रिवर्स. ये सी अब इसमें इफ़ यू हैव अ गुड, अब यहाँ पे वन वी अब दूसरी वीडियोज़ में अगर आपने कवर किया, दिस इज ऑल्सो अ की लेवल लाइक अ सपोर्ट लेवल. एंड इफ़ यू हैव अ सपोर्ट लेवल, so if you have a support level at this point, you can see how the price is rejected. Wicks represent rejection from that point. तो यहाँ पे rejection हुई, came back, it rejected, and we had a reversal candle. We now know कि हमें दो confluences अच्छी सी मिल गई हैं, and then we can ride the wave up. This is a very good trade. So इस तरह using candlesticks in confluence with other things in your strategy can really help. If you look at this is another example of how there is resistance, and then you have a reversal candle, and then you go down. Like we're talking about, we're looking into bearish harami right now, or inside candle. It's going inside bar bhi कहते हैं, different terminologies, and it's the same thing. We're trying to look for another one. If we can find a good one. We're looking. See this. This is another example of an bearish harami, an inside candle. And this is another example, but then this is considered in ये bullish के अंदर आता है, because it's a bearish is the bigger one and the bullish is the smaller one, the opposite होता है इसके. तो ये आप eventually देखोगे ऐसे सा. इधर देख लें. This is another example. ये बहुत ज़्यादा candles you're going to find them very regularly, ये patterns ना form होते हुए. Very common things. ये देख हमने जैसे we studied earlier engulfings. ये भी engulfing candle है. ये वाली engulfing है. ये बुलिश इनगल्फिंग है, ये बुलिश इनगल्फिंग है, ये बेरिश इनगल्फिंग है. बस आपने ना अपनी चीज़ों के साथ उसको स्ट्रैटेजी में एडजस्ट करके ले जाना है एंड देन वर्क ऑन इट. सही. वी वर लुकिंग एट दिस इज डार्क क्लाउड कवर. अब डार्क क्लाउड कवर क्या होता है? लाइक इट सेज योर प्रीवियस होना चाहिए टू क्लोजेस बिलो 50% ऑफ प्रीवियस वंस. सो कैंडल का जो मिड पॉइंट है ना, इससे नीचे आपका क्लोज होना चाहिए. थोड़ा गैप अप होके ओपन हो, देन क्लोजेस डाउन. सो ये आपको पैटर्न ऐसा नज़र आएगा. तो अगर ये 50% से ऊपर होता देन वी वुडंट हैव काउंटेड इट एज अ डार्क क्लाउड कवर. इफ यू गो बैक टू द चार्ट पैटर्न्स, वी वांट टू फाइंड समथिंग सिमिलर. गैप्स अप, doesn't have to be a big gap, can be a small gap as well, and then closes below. So we're looking for a very simple is a black candle, which is our bearish candle, followed by a gap up and then down. We're looking. This almost could have been अगर ये थोड़ा gap up होता. ये प्रैक्टिस के साथ इवेंचुअली होता है कि अब मैं तो क्योंकि चार्ट से तेज़ जा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस आई नो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. तो अब दिस इज़ अ गुड एग्जांपल. दिस कुड हैव बीन, लेकिन ये गैप जो था तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन ये कवर नहीं आ रहा ना, क्लोज नहीं है उसका. तो वी वांट समथिंग दैट गैप्स अप. डार्क क्लाउड कवर का गैप, these are see ये engulfing आ गई फिर से, the one we were talking about. We're looking for gap up.
लेट्स सी अगर वो हमें विल ट्राई कवरिंग द अदर वंस, अगर कहीं पर नज़र आया देन आई विल मेंशन दैट एंड देन वी कैन हैव दैट. लेट्स कंटिन्यू विद द अदर वंस. आई विल कीप मूविंग अराउंड द चार्ट. बाकी पैटर्न्स जहाँ पे मेरी नज़र पड़ेगी, जैसे मैं बाकी भी पॉइंट आउट करता हूँ, मैं इसको भी पॉइंट आउट कर दूंगा क्राउड कवर को. ये हमारे फिर एक और बेरिश पैटर्न है. दिस इज़ अ वेरी गुड पैटर्न. ये ट्यूजडे टॉप्स हैं. ट्यूजडे टॉप्स आर बेसिकली सिमिलर हाइज, इसको इक्वल हाइज भी कहते हैं. इक्वल हाइज देन क्लोज should be below the bullish. So then we know, okay, fine, there is momentum going in that direction. And plus, we're also looking at the evening star, where it is there's a gap up, we have a small candle, and then there's a gap down. Followed, this is a 3 candle pattern. So we were looking for tweezer tops, and this it's not all equal, so we're not going to count this. We're looking for equal with इतनी आइडियल परफेक्शन भी नहीं होती, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है. जैसे सी दिस इज़ ऑलमोस्ट इक्वल हाइज. दिस कैन बी कंसिडर्ड, क्योंकि आपको 100% उस तरह का नहीं मिलेगा. लेकिन सी दिस, इफ़ यू विल लुक एट, ये इक्वल हाइज ऑलमोस्ट है. दे डोंट हैव दैट थिंग, इसकी क्लोज नहीं है नीचे. दिस इज़ इक्वल, लेकिन दिस वुड बी अ पैटर्न if we go reverse. This is tweezer tops, and then we have tweezer bottoms. Same concept as bearish, but this is in a bullish. So see this, how it says okay, close can vary, but we're looking at something similar to this. We have equal bottoms, then we have closing almost at the same point, and there you go. हम इसी का reverse ढूंढ रहे हैं. अब अगर मैं इसको यहाँ पे एक होता है, there is an option for reversing the chart. I just find invert scale. अब मैं अगर स्केल इन्वर्ट कर लूँ ना, ये मैंने सिर्फ किया दिखाने के लिए. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी इजियर. सी हाउ यू हैव दिस इक्वल टॉप्स, देयर यू गो. कैंडल, इट डजंट हैव टू बी नेसेसरली, लेकिन इट शुड बी ऑलमोस्ट एट दैट पॉइंट. आइडियली सिचुएशन होती है कि उधर होना चाहिए बिलो, बट वी नेवर गेट द 100% आइडियल. हम ना एक्सपीरियंस के साथ सीख लेते हैं किस तरह होता है. लुक एट दिस, सेम थिंग, इक्वल बॉटम्स, बॉटम होगा. अब यही चीज़ अगर इधर होती, मैंने इन्वर्ट कर रहा हूँ स्केल को, मैं जैसे आपको रिवर्स नहीं कर देते, वो करने के लिए. सो इट्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स. यहाँ पे होता एंड देन यू कुड हैव जस्ट ट्रेडेड. अब यहाँ पे आपको इंडिकेशन आ गई, थोड़ी मार्केट स्टैग्नेट की एंड देन इट वेंट डाउन. कोर्स होता ही 100% इमीडिएटली नहीं होता, लेकिन यू कैन स्टिल यूज दिस एज एन इंडिकेशन विद समथिंग एल्स. अगर हम वी लुक इन द बैक, हम देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लेवल है. अब दिस इज समथिंग यू विल लर्न इन द फ्यूचर, but still for your reference I will show you what it is. So what we have here is called a fair value gap या imbalance, जहाँ पे प्राइस आता रिजेक्ट होती है. So if I have a tweezer tops right next to an imbalance, अब मुझे अंदाज़ा होगा कि ठीक है, now I can expect the price to reverse from this point. What I can do is I can take a trade. दिस इज़ एन सैम्पल, नॉट अ स्ट्रैटेजी, लेकिन अ लॉट ऑफ अदर तो कॉन्फ्लुएंसेज होती है. मुझे एक कॉन्फ्लुएंस ये मिल गई, मुझे एक कॉन्फ्लुएंस ये मिल गई, मैं एक और आइडली बट ट्राइंग फॉर 3. मैं प्रॉब्ली अगर आई एंटर, अब मुझे जब पता लग जाएगा ना, आई विल प्रॉब्ली एंटर या इधर, लेकिन यू गोना कीप इट अबव. थोड़ा सा गैप रूम देना होता है आपको कभी भी. देनी प्रेफरेबली इट्स वेयर द पैटर्न, क्योंकि आपको वो पैटर्न जब पता लगेगा यू विल नो कि दिस इज वेयर. आई कैन इवन एंटर एट दिस पॉइंट. ये एंट्री का target the lows, an easy 1 to 3 trade. So if I risk $10, I've made $33. लेकिन इसको चलो थोड़ा और नीचे कर लो, क्योंकि हमें कभी भी 100% मूव कैप्चर नहीं होती. तो 1 to 3 भी कर ले. I have just made $30. अब कैपिटल मेरे पास ज़्यादा हो, I have $100 to risk, I make 300. That's $300 in profit. Keep it simple. Look at the confluences. Put the concepts together. Price action, fair value gap. ऑफ कोर्स ये डाउन ट्रेंड में गया है. यहाँ पे एक और चीज़ आती है, दैट्स कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कहते हैं उसको. एंड या इफ़ यू लुक एट इट दिस वे, अब ये चीज़ हमने जैसे बाकी वीडियोस में देखी हुई है. दिस इज ए सपोर्ट, राइट? So I have a support here, that's one. I break the support, that is my first confluence.
I have a fair value gap, that is my second confluence, and I have a tweezer tops, that is my third confluence. No worries, trade entry की अपनी risk management strategy के हिसाब से, and then we're going. वो market open हुई है तो वो हुआ है. So we'll go back forward. Now where were we? This was just an example के concepts को use करके strategies कैसे बनानी है. हम inversion करके देखेंगे. जैसे हम ये piercing pattern है या bullish हरामी, अगर जैसे मैंने कहा जैसे bullish engulfing है, it's the opposite या the reverse of bearish engulfing. Say with bearish हरामी ये एक दूसरे के reverses हैं, opposites हैं, तो उसमें as long as you learn one, you've learned the other. ये सिर्फ practice का आगे काम है. जैसे hammer है, inverted hammer है, और किधर form होगा pattern. You can go through this sheet, have an idea. Piercing pattern is pretty much just how we have dark cloud cover. वही चीज़ है, बस ऑपोजिट है. मॉर्निंग स्टार हमारे इवनिंग स्टार का ऑपोजिट है. ये आगे सर्टिनिटी वाली कैंडल्स आ जाती हैं, जैसे बुलिश, आई बिलीव इट्स प्रोनाउंस मारूबोजू, हाँ मारूबोजू. इसमें क्या होता है कि आपकी कोई विक्स नहीं होते, आपका क्लोज और ओपन, हाई और लो सारा बॉडी के अंदर ही है, कोई विक्स नहीं है. सेम गोज फॉर दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न. ये हमारे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को इंडिकेट करता है. हमारे चार्ट पे जाके हम देखते हैं एनी सच कैंडल दैट इज विदिन अ कंटिन्यूएशन दैट डज नॉट हैव एनी विक्स. नॉर्मली हम कंटिन्यूएशन में इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, गिव अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन. ये भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है कि व्हेन यू हैव नो विक एट द बॉटम. लेकिन देख वो आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ डिटर्मिन करो. विक्स 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 नो विक्स कैंडल. सी दिस, मैंने कहा ना देयर इज नो आइडियल 100%, बट लुक एट दिस इज ऑलमोस्ट देयर. नो विक एट द बॉटम, टॉप पे भी एक माइनर विक, और वो माइनर विक भी इज बेसिकली नॉट इवन अ पिप. वो बस थोड़ा सा एक शैडो सा बना हुआ, ओपन करते हुए हल्का सा गैप मार्केट में आ जाता है उससे. तो ये कंसिडर हो सकती है. ठीक है, हम ट्रेंड के अंदर इसको ढूंढेंगे, ज़्यादा इजीली मिलेगी ट्रेंड में. अब ये देखें, ये विक्स नॉन एग्जिस्टेंट विक है. व्हेन यू लुक एट द प्राइस इज बेसिकली वेरी स्मॉल. सही, तो जैसे इधर देखा है, वी कम बैक, वी सी अनदर वन. वी गोना लुक फॉर, आई वांट टू फाइंड एन आइडियल वन टू शो. लेकिन वो ये ना कि मार्केट के ऊपर. अभी ये देखना, सी दिस, दीज आर वेरी स्मॉल नॉन एग्जिस्टेंट विक्स. तो यू हैव टू लर्न विद एक्सपीरियंस. आप सीखते हो कि क्या चीज़. अब ये सेम गोज हेयर, वेरी स्मॉल नॉन एग्जिस्टेंट विक्स. ये चीज़ें ऑफ कोर्स यू कैन नॉट जस्ट यूज दीज कैंडल्स ऑन देयर ओन, यू नीड टू हैव अदर कॉन्फ्लुएंसेस विद इट. आप उसके साथ अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट्स और स्ट्रैटेजी को बनाते हो. तो यू लर्न दीज विद प्रैक्टिस. जैसे मैंने आपको बुलिश दिखाया था, इसलिए बेरिश भी इसी तरह होता है. वी गो डाउन, दीज आर अनसर्टिनिटी. ये कैंडल्स वो होती हैं व्हेन वी डोंट डू एनीथिंग, वी लेट द मार्केट प्ले आउट, वी लेट द प्राइस प्ले आउट. जी, जैसे इसमें क्या शो किया है कि मोमेंटम इसलिए अच्छा है कि प्राइस ओपनड, सेलर्स में दे हैड नो स्ट्रेंथ. सेलर्स का इतना प्रेशर भी नहीं था कि इसको नीचे की तरफ, वो सीधा ऊपर पुश किया है. ये सेलर्स की वीकनेस शो करती है, ये बायर्स की वीकनेस शो करती है. क्योंकि शेडो, जैसे मैंने बताया था, क्या होते हैं, पुश डाउन्स होते हैं. जैसे अगर हम इधर एग्जांपल देखेंगे, यहाँ वाली, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, सेलर्स ने पुश किया प्राइस को नीचे, लेकिन बायर्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, दे ब्रॉट इट बैक अप. ये हमारी बुलिश, हमें मार्केट की स्टडी ऐसे पता लगती है. अब ये कैंडल में सेलर्स में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थी टू पुश इट डाउन. पूरी इस टाइम फ्रेम में मार्केट को बायर्स ने या बेरिश सेंटिमेंट ने डिक्टेट करके पुश किया है, बिल्कुल प्रेशर नहीं था. सेम गोज विद द बुलिश सेंटिमेंट का. ये चीज़ें, इसको देख के आपको ना आइडिया इस तरह एनालिसिस होता है. आप मार्केट में ना प्राइस को स्टडी इस तरह कर सकते हो. अनसर्टिनिटी क्या होती है, ये दोनों बैलेंस में है. आप ऊपर गए हो, उतना ही नीचे आए हो, उधर ही क्लोज हुई है जिधर ओपन हुई है. किसी की भी साइड के पास ना स्ट्रेंथ नहीं है, वो इक्वल ग्राउंड के ऊपर हैं. तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि वी डोंट नो whether the buyers are going to push, whether the sellers are going to push, the money is coming in, the money is going out. We are not sure, so we just wait. हम ऐसे टाइम पे मार्केट में वेट ही करेंगे. ऐसी कैंडल्स आपको मिलेंगी, ये देखें यहाँ पे सीधा सीधा मिल गई हैं. अब ऐसी कैंडल्स जब मिलती हैं, ऑफ कोर्स ये देखो माइनर है, हाउ प्राइस केम डाउन और प्राइस उधर तक, इसको भी हम इसी में कंसिडर करेंगे. ये भी कोई अच्छी इतनी नहीं है.
तो इसको क्योंकि मैंने जूम इन बहुत किया, अगर मैं इसको जूम आउट कर लूँ तो ये देखो ये नॉन एग्जिस्टेंट हो जाए। तो यहाँ पे देख रहे हो हाउ प्राइस इज स्टक इन दैट कंसोलिडेशन रेंज. They don't know, okay, we go up, we go down, the price is getting stuck there. And then eventually when this pattern came in, यहाँ से पुश हुआ, इधर ब्रेक हुआ, ये जैसे मैंने पहले पैटर्न आपको दिखाया था. I forgot let me remind you the pattern I told you. Tweezer tops भी था, engulfing भी था. अब इसमें देखें ना, so see this is an engulfing. मार्केट में डाउन ट्रेंड था, लेकिन वी वर कंफ्यूज्ड कहाँ जाना है. यहाँ पे इनगल्फिंग आई, इट गेव मी अ कन्फर्मेशन कि हाँ अब सही है. दे हैव डिटर्मिन्ड कि प्राइस डिसाइड हो गई है, मार्केट में सेलर्स आ गए हैं. एंड सी हाउ द प्राइस गोज डाउन. दिस इज़ अ वेरी बिग मूव टू कैप्चर. अगर आप इधर आके ना इधर इस पॉइंट से देख लो ना, दिस इज़ 42 पिप्स. अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है, अगर आपकी पोजिशन साइजिंग अच्छी है, 42, there are people making 10-15 pips a day and that is it. That is good enough to cover everything. So you have to realize how it is. All it comes down to your risk management, your position sizing and your capital. आपने ये भी realize करना कि of course अगर मैं $100 पे move लूँगा तो वो तो रिटर्न उसका इतना नहीं होगा. लेकिन if I take a move on $1,000 या $10,000 या $100,000, वहाँ पे leverage आ जाता है. Leverage को use करके this is a good enough move to make you $100, $200 easy, depending on your position sizing. Of course, आपके capital और अपनी risk management को under consideration लेते हुए. We're going to move on to, we had uncertainty थी. So this comes down, see this is the spinning tops, the bearish and the bullish. ये भी वही चीज़ है. You're uncertain, you don't know, just like I showed you. See how this is a spinning top, this is a doji. तो स्पिनिंग टॉप्स और डोजी हमारे हो गए हैं. एंड देन यू हैव कंबाइंड. अब what this combined is, so far I expect you kind of know. I'm going to rush through it because the video is going to get too long. A basic idea or concept आपको दे देता हूँ, and then you work on it, you practice it, you build on it. If there's any confusions, groups हैं हमारे, and then you can just go into the groups. The numbers are there, you can contact, and then go from there. Combined. अब let me tell you something. Every candle represents something. अब अगर जो शूटिंग स्टार है, इफ दिस इज अ 1 hour कैंडल, यू हैव टू सी कि 1 hour कैंडल जब ब्रेक करोगे तो वो 2 30-minute कैंडल्स बनती. उस 2 30 minutes में मार्केट ने ये एक्टिविटी दी. तो इफ यू लुक एट इट ऑन अ शॉर्टर फ्रेम, these are the two candles that represent, but you combine them on the bigger frame, this is what it is. तो हर कैंडल आप जैसी हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हो ना, तो कैंडल के अंदर जैसे सब कैंडल्स कह लो, ऑफ कोर्स अगर 4 hour की कैंडल है तो वो 4 1 hour कैंडल से बनती है. तो आप इस तरह मार्केट को जब आप आगे ट्रेडिंग करोगे, जो आगे वीडियोस में भी कवर है, वो आप समझोगे कि हाउ वी ट्रेड फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम. यू लुक एट दिस, द प्राइस ओपन हेयर, प्राइस क्लोज्ड हेयर. अब ये हमारी ओपनिंग सेट होगी इसकी. आई एम गोइंग टू assume कि दिस इज अ 30-minute कैंडल, 30 minute combined to make 1 hour, and then the press white all the way up here. ये आपका हाई हो गया, came down, ये आपका लो और ये आपका क्लोज. इस तरह कंबाइन करके बनती हैं कैंडल्स. The same goes for the piercing pattern, the cloud cover. All of these are combinations of multiple candles that give you a bigger idea of things. If I can show you an example, let me see some engulfing. अब ये आपकी है engulfing candle. See, this is, we'll make a line here, vertical, so it's easy for you to understand the candle. This is a 1 hour candle. If I break it down into 30 minutes, सही है. अब क्या मैं इसको सेट ऐसे नहीं, मैं इसको ऐसे सेट करता हूँ. First let me get rid of this. Let me get a 1 hour candle to show you this. What I'll do is I'll make horizontal lines. हालांकि चार्ट उधर लगा हुआ है. I don't know why I'm doing this. You go with the magnet. Magnet is a good tool. ये, and then I just kind of copy it. This, another one, this point, another one at this point, and another one at this point. अब ये मेरे 4 points हो गए. If you want, I'll color them as well to make it simpler. कि ये मेरा orange is my high. The orange represents my high and low.
and the black represent my opening and closing. अब this is where the candle starts at 10 a.m. अब if I break it down to two 30-minute candles, and it's loading. हाँ, लोड होने में टाइम लग गया. अब ये देखें. अब this is where it started at 10. ये इसकी ओपनिंग थी, ये इसका लो था, सही है. कैंडल इधर क्लोज हुई, यहाँ पे 10:30 पे ओपन हुई है इसका हाई, एंड देन इट केम डाउन टू इट्स क्लोजिंग एट 10:30 क्लोज हुई, तो ये 11 स्टार्ट हो गया. ये 10 to 10:30, 10:30 to 11 की दो कैंडल्स थी. इनको देखें तो दिस इज हाउ दे लुक. व्हेन यू लुक एट इट इन अ बिगर फ्रेम एट अ 1 hour, ये हमारा शूटिंग स्टार बन जाता है, या इन्वर्टेड हैमर, वट एवर टर्मिनोलॉजी टू मल्टीपल यूज. दिस इज, ये हमारा शूटिंग स्टार बन गया. सी, बट शेप कुछ भी हो सकती है. सो दैट्स वाई यू लुक एट अ हाई टाइम फ्रेम, यू गो टू द लोअर फॉर मोर एनालिसिस. लेकिन यू नो कैंडल्स, इसमें और भी पैटर्न्स हैं काफ़ी सारे. देयर आर लॉट ऑफ पैटर्न्स देयर. इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू सी, हाउ यू वांट टू अंडरस्टैंड देम एंड लर्न. अपनी स्ट्रैटेजी में यूज़ कर सकते हैं. लेकिन आई होप दीज कॉन्सेप्ट्स वर क्लियर इनफ टू हेल्प यू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ these patterns are formed. You start looking at the chart, आप अपने कैंडल्स देखो, उनको देखो. अब जैसे यहाँ पे सी, व्हेन आई यू हैव प्रैक्टिस, मेरी प्रैक्टिस, आई केम अप हियर, मैंने ये देखा, ये देखे, यहाँ पे मुझे मिले ट्वीज़र टॉप्स, ठीक है. एक तो ये मुझे कॉन्फ्यूज मिल गई. सेकेंडली मैंने देखा कि यहाँ पे रिजेक्शंस हो रही हैं, मार्केट थोड़ी देर कंफ्यूज है लेकिन रिजेक्शंस हो रही हैं. सो ये मेरा एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस बन गया. अब अगर मैं इसको रेजिस्टेंस कंसिडर करूँ, इस पॉइंट को, मेरे ट्वीज़र टॉप भी है, मेरा शूटिंग स्टार भी है, यहाँ पे कन्फ्यूजन भी है, ठीक है. लेकिन इवेंचुअली अब ये रिवर्सल पैटर्न है. उसके बाद मुझे ये भी मिला है, इनगल्फिंग कैंडल. सी, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स भी देखूँ ना, तो आई हैव, अब यहाँ पे जो 3 है ना, इसको आई बिलीव 3 डार्क क्रोज भी कहते हैं. ये 3 कैंडल पैटर्न्स है, होते हैं मार्केट में. मैं 3 को इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करता मैं, क्योंकि बाकी चीज़ों का एज ए कॉन्फ्रेंस यूज़ कर रहा हूँ. लेकिन यू कैन, व्हाट आई डू इज़ आई लुक फॉर यू, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स में. यहाँ पे जैसे जस्ट सिंपल गूगल टू गिव एन आइडिया, जो 3 वाइट सोल्जर्स हैं और 3 लाइन स्ट्राइक, नहीं 3 लाइन, हाँ 3 ब्लैक क्रोज, डार्क क्रोज कह रहा था, ये 3 ब्लैक क्रोज है. दिस इज इन में जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. आपको ये सारी ना ऑनलाइन काइंड ऑफ आइडियाज मिल जाएंगे, बट ऑफ कोर्स एक्सप्लेन करना और एग्जांपल्स देना इज़ व्हाट मैटर्स. दिस इज़ व्हाट वी वर लुकिंग एट वाज, बहुत सारे हैं, आपने सेलेक्ट करने होते हैं कौन से आपके प्रेफरेबल है. 3 ब्लैक क्रोज, ये हमारा बेरिश पैटर्न है. अगर मैं अपने इसको देखूं तो काइंड ऑफ ये ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है. तो 3 ब्लैक क्रोज एट अ पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉलोड बाय एन इनगल्फिंग, ये भी आपकी स्ट्रैटेजी बन सकती है. रिस्क मैनेजमेंट अच्छी करो, लेकिन इसको बैक टेस्ट करो, इन चीज़ों को देखो. वंस यू गेट यूज टू इट, यू स्टार्ट लुकिंग एट इट, यू विल बी क्वाइट गुड. अब मैं इसको देखूँ, मुझे यहाँ पे अपना वो इम्बैलेंस भी नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे पैटर्न भी नज़र आ रहा है. मुझे अब आई कैन सी द स्ट्रैटेजीज दैट आई हैव, बिकॉज दैट्स प्रैक्टिस दैट टेक्स यू देयर. So make sure you do a lot of practice, go through these multiple times, build up your skill to just look and be able to pinpoint things out. Either bullish engulfing, look here, bearish engulfing, ठीक है, ये आपका शूटिंग स्टार है, आप इस तरह. सो दिस इज, ये देखो bearish engulfing. You should be able to practice enough. तो ये आपके 3 white soldiers, ये इतना होना चाहिए कि you just look at them and you can just pick them out straight away without any hesitation. Anyways, this should give you an idea about what you need to know about candlesticks, how you should be working on candlesticks, how you can use them potentially. मैंने examples दिए हैं. And then you practice these, you learn these, you build your skill. आप अपनी आई ऑप्टिक्स ऐसे बिल्ड करो कि आप जैसे कहते हैं ना स्नाइपर एंट्रीज, ये कॉन्सेप्ट है स्नाइपर एंट्रीज का. एक यू कैन, आपकी बहुत अच्छा पॉइंट हो लेकिन यू जस्ट फोकस हो, आप देखते हो आपके फोकस में स्कोप है, उसको इमीडिएटली कैप्चर कर लेते हो. ये चीज़ भी आपको करनी चाहिए. विल मूव ऑन टू अदर कॉन्सेप्ट्स इन फर्दर वीडियोस. प्रीवियस में भी कुछ कवर हुए हैं, फर्दर में भी हुए हैं. सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करें. तो जैसे इधर देखा है, वी कम बैक, वी सी अनदर वन. We're gonna look for, I want to find an ideal one to show. लेकिन वो ये ना कि मार्केट के ऊपर अब ये देखना, सी दिस, these are very small non-existent wicks.
तो यू हैव टू लर्न विद एक्सपीरियंस, आप सीखते हो कि क्या चीज़, अब ये सेम गोज हेयर, वेरी स्मॉल नॉन एग्जिस्टिंग विक्स, ये चीज़ें ऑफ कोर्स यू कैन नॉट जस्ट यूज़ दीज कैंडल्स ऑन देयर ओन, यू नीड टू हैव अदर कॉन्फ्लुएंसेस विद इट। आप उसके साथ अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट्स और स्ट्रैटेजी को बनाते हो। तो यू लर्न दीज विद प्रैक्टिस। जैसे मैंने आपको बुलिश दिखाया था, इसलिए बेरिश भी इसी तरह होता है। वी गो डाउन, दीज आर अनसर्टिनिटी। ये कैंडल्स वो होती हैं व्हेन वी डोंट डू एनीथिंग, वी लेट द मार्केट प्ले आउट, वी लेट द प्राइस प्ले आउट। जी, जैसे इसमें क्या शो किया है कि मोमेंटम इसलिए अच्छा है कि प्राइस ओपनड, सेलर्स में दे हैड नो स्ट्रेंथ, सेलर्स का इतना प्रेशर भी नहीं था कि इसको नीचे की तरफ, वो सीधा ऊपर पुश किया है। ये सेलर्स की वीकनेस शो करती है, ये बायर्स की वीकनेस शो करती है, क्योंकि शेडो जैसे मैंने बताया था क्या होते हैं, पुश डाउन्स होते हैं। जैसे अगर हम इधर एग्जांपल देखें यहाँ वाली, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, सेलर्स ने पुश किया प्राइस को नीचे, लेकिन बायर्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, दे ब्रॉट इट बैक अप। ये हमारी बुलिश, हमें मार्केट की स्टडी ऐसे पता लगती है। अब ये कैंडल में सेलर्स में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थी टू पुश इट डाउन। पूरी इस टाइम फ्रेम में मार्केट को बायर्स ने या बेरिश सेंटिमेंट ने डिक्टेट करके पुश किया है, बिल्कुल प्रेशर नहीं था। सेम गोज विद द बुलिश सेंटिमेंट का। ये चीज़ें, इसको देख के आपको ना आइडिया इस तरह एनालिसिस होता है, आप मार्केट में ना प्राइस को स्टडी इस तरह कर सकते हो। अनसर्टिनिटी क्या होती है, ये दोनों बैलेंस में है। आप ऊपर गए हो, उतना ही नीचे आए हो, उधर ही क्लोज हुई है जिधर ओपन हुई है। किसी की भी साइड के पास ना स्ट्रेंथ नहीं है, वो इक्वल ग्राउंड के ऊपर हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि वी डोंट नो whether the buyers are going to push, whether the sellers are going to push, the money is coming in, the money is going out. We are not sure, so we just wait. हम ऐसे टाइम पे मार्केट में वेट ही करेंगे। ऐसी कैंडल्स आपको मिलेंगी, ये देखें यहाँ पे सीधा सीधा मिल गई हैं। अब ऐसी कैंडल्स जब मिलती हैं, ऑफ कोर्स ये देखो माइनर है, हाउ प्राइस केम डाउन और प्राइस उधर तक, इसको भी हम इसी में कंसिडर करेंगे, ये भी कोई अच्छी इतनी नहीं है। तो इसको, क्योंकि मैंने जूम इन बहुत किया है, अगर मैं इसको जूम आउट कर लूँ तो ये देखो ये नॉन एग्जिस्टेंट हो जाए। तो यहाँ पे देख रहे हो हाउ प्राइस इज स्टक इन दैट कंसोलिडेशन रेंज। They don't know, okay, we go up, we go down, the price is getting stuck there, and then eventually when this pattern came in, यहाँ से पुश हुआ, इधर ब्रेक हुआ, ये जैसे मैंने पहले पैटर्न आपको दिखाया था, I forgot, let me remind you the pattern I told you, tweezer tops भी था, engulfing भी था। अब इसमें देखें ना, so see this is an engulfing, मार्केट में डाउन ट्रेंड था, लेकिन वी वर कंफ्यूज्ड कहाँ जाना है। यहाँ पे इनगल्फिंग आई, इट गेव मी अ कन्फर्मेशन कि हाँ अब सही है, दे हैव डिटर्मिन्ड कि प्राइस डिसाइड हो गई है, मार्केट में सेलर्स आ गए हैं, एंड सी हाउ द प्राइस गोज डाउन। दिस इज़ अ वेरी बिग मूव टू कैप्चर। अगर आप इधर आके ना, इधर इस पॉइंट से देख लो ना, दिस इज़ 42 पिप्स। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है, अगर आपकी पोजिशन साइजिंग अच्छी है, 42, there are people making 10-15 pips a day and that is it. That is good enough to cover everything. So you have to realize how it is. All it comes down to your risk management, your position sizing and your capital. आप ये भी रियलाइज करेंगे, ऑफ कोर्स अगर मैं $100 पे मूव लूँगा तो वो तो रिटर्न उसका इतना नहीं होगा, लेकिन इफ़ आई टेक अ मूव ऑन $1,000 या $10,000 या $100,000, वहाँ पे लेवरेज आ जाता है। लेवरेज को यूज़ करके you can, this is a good enough move to make you $100, $200 easy, depending on your position sizing, of course आपके capital और अपनी risk management को under consideration लेते हुए। We're going to move on to, we had uncertainty थी, so this comes down, see this is the spinning tops, the bearish and the bullish, ये भी वही चीज़ है, you're uncertain, you don't know, just like I showed you, see how this is a spinning top, this is a doji, तो स्पिनिंग टॉप्स और डोजी हमारे हो गए हैं, एंड देन यू हैव कंबाइंड। अब what this combined is, so far I expect you kind of know, I'm going to rush through it because the video is going to get too long. A basic idea or concept आपको दे देता हूँ, and then you work on it, you practice it, you build on it. If there's any confusions, groups हैं हमारे, and then you can just go into the groups, the numbers are there, you can contact, and then go from there. Combined, अब let me tell you something, every candle represents something. अब अगर जो शूटिंग स्टार है, इफ दिस इज अ 1 आवर कैंडल, यू हैव टू सी कि 1 आवर कैंडल जब ब्रेक करोगे तो वो 2 30 मिनट कैंडल्स बनती है। उस 2 30 मिनट्स में मार्केट ने ये एक्टिविटी दी। तो इफ यू लुक एट इट ऑन अ शॉर्टर फ्रेम, these are the two candles that represent, but you combine them on the bigger frame, this is what it is. तो हर कैंडल, आप जैसी हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम भी जाते हो ना,
तो कैंडल के अंदर जैसे सब कैंडल्स कह लो, ऑफ कोर्स अगर 4 आवर की कैंडल है तो वो 4 1 आवर कैंडल से बनती है। तो आप इस तरह मार्केट को जब आप आगे ट्रेडिंग करोगे, जो आपकी वीडियोस में भी कवर्ड है, वो आप समझोगे कि हाउ वी ट्रेड फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। यू लुक एट दिस, द प्राइस ओपन हेयर, प्राइस क्लोज्ड हेयर। अब ये हमारी ओपनिंग सेट होगी इसकी। आई एम गोना assume that this is a 30-minute candle, 30 minute combined to make 1 hour, and then the press white all the way up here, ये आपका हाई हो गया, came down, ये आपका लो, और ये आपका क्लोज। इस तरह कंबाइन करके बनती हैं कैंडल्स। The same goes for the piercing pattern, the cloud cover. All of these are combinations of multiple candles that give you a bigger idea of things. If I can show you an example, let me see some engulfing. अब ये आपकी है engulfing candle. See, this is, we'll make a line here, vertical, so it's easy for you to understand the candle. This is a 1 hour candle. If I break it down into 30 minutes, सही है। अब क्या मैं इसको सेट ऐसे नहीं, मैं इसको ऐसे सेट करता हूँ। First let me get rid of this. Let me get a 1 hour candle to show you this. What I'll do is I'll make horizontal lines. हालांकि चार्ट उधर लगा हुआ है, I don't know why I'm doing this. You go with the magnet. Magnet is a good tool. ये, then I just kind of copy it. This, another one, this point, another one at this point, and another one at this point. अब ये मेरे 4 पॉइंट्स हो गए। If you want, I'll color them as well to make it simpler. कि ये मेरा orange is my high. Orange represents my high and low, and the black represent my opening and closing. अब this is where the candle starts at 10 a.m. अब if I break it down to 2 30-minute candles, and it's loading. हाँ, लोड होने में टाइम लग गया। अब ये देखें, अब दिस इज़ वेयर इट स्टार्टेड एट 10। ये इसकी ओपनिंग थी, ये इसका लो था, ठीक है। कैंडल इधर क्लोज हुई, यहाँ पे 10:30 पे ओपन हुई, ये इसका हाई, एंड देन इट केम डाउन टू इट्स क्लोजिंग एट 10:30 क्लोज हुई, तो ये 11 स्टार्ट हो गया। ये 10 to 10:30, 10:30 to 11 की 2 कैंडल्स थी। इनको देखें तो दिस इज़ हाउ दे लुक, बट व्हेन यू लुक एट इन अ बिगर फ्रेम एट अ 1 hour, ये हमारा शूटिंग स्टार बन जाता है, या इन्वर्टेड हैमर, वट एवर टर्मिनोलॉजी टू मल्टीपल, दिस इज, ये हमारा शूटिंग स्टार बन गया। सी, बट शेप कुछ भी हो सकती है। सो दैट्स वाई यू लुक एट हाई टाइम फ्रेम, यू गो टू द लोअर फॉर मोर एनालिसिस, लेकिन यू नो कैंडल्स। इसमें और भी पैटर्न्स हैं काफ़ी सारे, देयर आर लॉट ऑफ पैटर्न्स देयर। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू सी, हाउ यू वांट टू अंडरस्टैंड देम एंड लर्न। अपनी स्ट्रैटेजी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई होप दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर इनफ टू हेल्प यू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ these patterns are formed. You start looking at the chart, आप अपने candles देखो, उनको देखो। अब जैसे यहाँ पे see when you have practice, मेरी practice I came up here, मैंने ये देखा, ये देखें, यहाँ पे मुझे मिले tweezer tops, ठीक है। एक तो ये मुझे कॉन्फ्यूज मिल गई। सेकेंडली मैंने देखा कि यहाँ पे रिजेक्शंस हो रही हैं, मार्केट थोड़ी देर कंफ्यूज है लेकिन रिजेक्शंस हो रही हैं, सो ये मेरा एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस बन गया। अब अगर मैं इसको रेजिस्टेंस कंसिडर करूं, इस पॉइंट को, मेरे ट्वीज़र टॉप भी है, मेरा शूटिंग स्टार भी है, यहाँ पे कन्फ्यूजन भी है, ठीक है, लेकिन इवेंचुअली अब ये रिवर्सल पैटर्न है। उसके बाद मुझे ये भी मिला है इनगल्फिंग कैंडल। सी, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स भी देखूँ ना, तो आई हैव, अभी यहाँ पे जो 3 है ना, इसको आई बिलीव 3 डार्क क्रोज भी कहते हैं। ये 3 कैंडल पैटर्न्स है, होते हैं मार्केट में। मैं 3 को इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करता मैं, क्योंकि बाकी चीज़ों का एज ए कॉन्फ्रेंस यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन यू कैन, व्हाट आई विल डू इज़ आई विल लुक फॉर यू, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स में यहाँ पे जैसे जस्ट सिंपल गूगल टू गिव एन आइडिया, जो 3 वाइट सोल्जर्स हैं और 3 लाइन स्ट्राइक, नहीं 3 लाइन, हाँ 3 ब्लैक क्रोज, डार्क क्रोज कह रहा था, ये 3 ब्लैक क्रोज है। दिस इज इन में जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। आपको ये सारी ना ऑनलाइन काइंड ऑफ आइडियाज़ मिल जाएंगे, बट ऑफ कोर्स एक्सप्लेन करना और एग्जांपल्स देना इज़ व्हाट मैटर्स।
दिस इज़ व्हाट वी वर लुकिंग एट वाज, बहुत सारे हैं, आपने सेलेक्ट करने होते हैं कौन से आपके प्रेफरेबल है। 3 ब्लैक क्रोज, ये हमारा बेरिश पैटर्न है। अगर मैं अपने इसको देखूं तो काइंड ऑफ ये ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है। तो 3 ब्लैक क्रोज एट अ पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉलोड बाय एन इनगल्फिंग, ये भी आपकी स्ट्रैटेजी बन सकती है। रिस्क मैनेजमेंट अच्छी करो, लेकिन इसको बैक टेस्ट करो, इन चीज़ों को देखो। वंस यू गेट यूज टू इट, यू स्टार्ट लुकिंग एट इट, यू विल बी क्वाइट गुड। अब मैं इसको देखूँ, मुझे यहाँ पे अपना वो इम्बैलेंस भी नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे पैटर्न भी नज़र आ रहा है, मुझे अब आई कैन सी द स्ट्रैटेजीज दैट आई हैव, बिकॉज दैट्स प्रैक्टिस दैट टेक्स यू देयर। So make sure you do a lot of practice, go through these multiple times, build up your skill to just look and be able to pinpoint things out. Either I bullish engulfing, look here, bearish engulfing, ठीक है, ये आपका शूटिंग स्टार है, आप इस तरह। सो दिस इज, ये देखो बेरिश engulfing, यू शुड बी एबल टू प्रैक्टिस इनफ। तो ये आपके 3 white soldiers, ये इतना होना चाहिए कि यू जस्ट लुक एट देम and you can just pick them out straight away without any hesitation. Anyways, this should give you an idea about what you need to know about candlesticks, how you should be working on candlesticks, how you can use them potentially, many examples दिए हैं, and then you practice these, you learn these, you build your skill। आप अपनी आई ऑप्टिक्स ऐसे बिल्ड करो कि आप जैसे कहते हैं ना स्नाइपर एंट्रीज, ये कॉन्सेप्ट है स्नाइपर एंट्रीज का। एक यू कैन, आपकी बहुत अच्छा पॉइंट हो, लेकिन यू जस्ट फोकस हो, आप देखते हो आपके फोकस में स्कोप है, उसको इमीडिएटली कैप्चर कर लेते हो। ये चीज़ भी आपको करनी चाहिए। We'll move on to other concepts in further videos.